Hello everyone, welcome to my channel. And today I'm going to talking about what is the purpose of a life. Strange, huh? This is a very curious thing to want to eager to know about what is our purpose to our life. Am I right? Like किसी को नहीं पता. I know. I know what is my purpose, and I guess सबका यही purpose होगा कहीं ना कहीं. बाकी चीज़ें भी होंगी, but one of them is आत्मज्ञान. This is a very deep thing. If you know, you know. Atmagyan, a self-knowledge. What's the meaning of self-knowledge? Look, I'm not telling about your what you need, what you like self-awareness. Yes, I know myself. I know self-awareness. आप ये सोच रहे हो ना? Like yes, I know. I like to drink this. I like to drink that. I like to watch this movie. I like that place. This is my favorite person. I feel this sometime. I feel that sometime. Yes, you are thinking about this only. Self awareness कि तुम क्या पसंद है, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या फील करते हो. This is a self awareness, not a आत्मज्ञान. Whatever you are thinking about आत्मज्ञान, first of all let me explain you. I'm not telling about the things that you like physically. I mean like physical human body, जो हमारी human body है, उसको क्या पसंद है ये मैं नहीं बोल रही हूँ. I'm telling about what your soul needs, what your soul like. देखो, this is अभी के टाइम पे हर कोई भाग दौड़ रहा है. हर कोई दौड़ रहा है किसके पीछे? पैसे के पीछे. Like every person. Students are running किसके पीछे? मार्क्स के पीछे, स्कोर्स के पीछे. Look at me, I'm also a student. Adults are running. Why? Because they need money. I also need money. Money is a basic need of every human being, right? But उसके अलावा भी बाकी चीज़ें. And उनमें से एक चीज़ आती है आत्मज्ञान, जो आई गेस हर किसी को होना चाहिए. अपनी डेथ से पहले आत्मज्ञान होना चाहिए. एंड अभी के टाइम पे तो लोगों को इसके लिए टाइम ही नहीं मिलेगा. नेवर. Okay, now tell me, what is Atmagyan? Atmagyan is knowing about your soul. अब अगर आपका तबीयत ख़राब होता है, आपको बुखार लग जाता है, आपको खांसी हो जाती है, सर दर्द होता है, आप क्या करते हो? आप दवाई लेते हो, यू टेक मेडिसिन्स एंड देन कुछ डेज़ के बाद आप ठीक हो जाते हो, राइट? बट अब जब मेंटली इलनेस से सफ़र करते हो, तब जब आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहता, तब आप क्या करते हो? द टीनेजर्स वो रात भर रोते हैं, सुबह को फिर से हंसने लगता है. अरे से वो अपना पूरा सफ़र करता है मेंटल इलनेस, राइट? अडल्ट रहता है, वो क्या करता है? वो थेरेपिस्ट के पास जाता है अपने मेंटल इलनेस ठीक करने के लिए. कुछ लोग ऐसे ही सफ़र करता है, बस सफ़र करता है. और उनमें से कुछ लोग ड्रंक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं टू हील देयर मेंटल हेल्थ. बट उनको नहीं पता वो उल्टा और ख़राब हो रहा है, राइट? दिस इज़ द थिंग. अब बट नो वंस नो हाउ टू हील देयर मेंटल हेल्थ बाय ओन वे. अभी हमारा मेंटल हेल्थ ख़राब होता है, और जब हमारा मेंटल हेल्थ ख़राब होता है, यू नो व्हाट, हमारी जो इनर सोल रहती है, हम लोग की जो आत्मा रहती है, वो धीरे धीरे डैमेज होती है. And try this thing if you are mentally unstable, and when you go for doing meditation, your body will shivering, your body will shaking. Why? Because आपका जो inner soul है वो डैमेज हो गया है. And उसको हील करने के लिए you have to know about yourself, you have to understand yourself first of all. But how? हम आत्मज्ञान कैसे लाएं? How to gain knowledge about आत्मज्ञान, and what is actually आत्मज्ञान? The आत्मज्ञान is basically, अगर मैं आपको explain करूँ in normal simple language, to knowing about your soul, knowing about how to detach, how to know how to detach with people, materialistic things, how to detach from all those things. Detachment, understanding about your soul,
अवेयरनेस ऑफ योर सोल, कि हमारी बॉडी क्या चाहती है वो हमें पता है, बट हमारा इनर सोल क्या चाहता है उसका अवेयरनेस। हमारा सोल क्या चाहता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सबका सोल अलग अलग नहीं है. सोल इज़ जस्ट अ वन थिंग. सोल इज़ जस्ट अ वन. एंड when your body burn, look, our body is made from muscles and cells, right? When this body burn, our soul get out from our body and they find other body. That in very simple language, that as I told you, knowing a detachment, knowing about your soul, how to heal your soul, and this is a very easy thing you can heal to your soul, your mental health. How? While doing meditation. You know, meditation is such a powerful thing to get awareness about your soul, knowledge of your soul. Meditation is that powerful thing. और आई गेस अभी के टाइम पे किसी को मेडिटेशन से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक दे आर बिजी इन देयर ओन थिंग्स. बट ट्रस्ट मी, just do it once a while. It will very help you. It helps to your mental health and also healing your soul. Second thing and most important thing, detachment is such a hard thing. What is detachment? Detachment means कि look, I have this cup of coffee and you know what, I just love coffee. I am just a bigger coffee person. अब ये I just love this cup and इसके अंदर जो कॉफ़ी है मुझे दोनों बहुत पसंद है. एंड अगर ये कॉफ़ी मेरे से दूर चली जाती है, लाइक अभी ये मेरे पास है, आई एम हैप्पी, एंड वो चीज़ मेरे से दूर चली जाती है, फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. बट मतलब वो चीज़ अगर मेरे पास है देन ऑल्सो ओके, नहीं है देन ऑल्सो ओके. एंड ये करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बिकॉज दिस मोस्टली हैपन्स विद अस व्हेन जब कोई इंसान हमें छोड़ के चला जाता है. दिस इज़ अ वेरी डीप थिंग इन योर रिलेशनशिप, इन योर फ्रेंडशिप, इन योर फैमिली, और वो पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करते, लाइक यू बोथ आर वेरी अटैच टू ईच अदर, ठीक है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच है, और उनमें से एक जन आपको छोड़ के चला जाता है. व्हाट विल हैपन? वन पर्सन विल ब्रेक टोटली. उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी, वो रो के अपनी फिजिकल हेल्थ ख़राब कर देगा एंड एवरीथिंग. इट मीन्स उसको फ़र्क पड़ रहा है एंड दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट. एंड इसका ही अपोजिट है डिटैचमेंट, कि अगर वो इंसान है तभी भी आप खुश हो और अगर वो नहीं है तभी भी खुश हो. एंड दिस इज सच ए इम्पॉर्टेंट थिंग कि हर एक ह्यूमन बीइंग को आना चाहिए, हर एक ह्यूमन बीइंग को ये चीज़ आना चाहिए. एंड अगर ये चीज़ अगर हर एक इंसान को आ गया, they will never hurt. Leave without any expectations, with detachment. This is called आत्मज्ञान, कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है किसी से. You only care about God, nature, and that's it. Like, just relax and believe in God without taking any tension. Like literally detached from each and everything, and this is such a hard thing to do. But once you learn this thing, your life will get so easy. And currently I'm working on this. Currently I'm studying on this. I'm reading a one book, Jyoti Se Jyoti Jale, written by Osho, a big philosopher, a big Indian philosopher. I guess कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा. If you really want to know, go and search about him. He is such a big Indian great philosopher, but for some reasons उनको अरेस्ट कर दिया गया था एंड अब उनकी डेथ हो गई. एंड उन्होंने ये बुक लिखा है ज्योति से ज्योति जले. एंड आई एम जस्ट अ बिगिनर, आई रियली वांट टू शेयर दिस थिंग कि आई गेस कुछ लोगों को हेल्प हो इन दिस बिजी लाइफ, इन दिस बिजी घोर कलयुग लाइफ. बिकॉज हमें हर एक चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. हमें कोई जज कर लिया, हमें कोई कुछ बोल दिया, टीचर ने सबके सामने हमारी इंसल्ट कर दी, या किसी हमारे बॉस ने सबके सामने हमारी इंसल्ट कर दी, वी रियली हर्ट अ लॉट.
कि इतनी सी बात से हमें ट्रॉमा हो जाता है, इतनी सी बात से हमारी पूरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है, हमारा पूरा दिन ख़राब हो जाता है। बट अगर आपको आत्मज्ञान आ जाता है ना, आपको किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक लिटरली नथिंग। इसने बोल दिया, ओके, देयर ओपिनियन, उनका माइंडसेट। इससे अब आपने पूरा 24/7 क्यों बिगाड़ो, अपना 24 आवर्स क्यों बिगाड़ो। वो 2 मिनट का सेंटेंस, वो पर्सन आया, आपको कुछ बोला एंड आपको हर्ट कर गया, एंड इसकी वजह से वो आप पूरा दिन, कोई लोग पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा साल बिगाड़ देते हैं जस्ट बिकॉज हमें फ़र्क पड़ता है, जस्ट बिकॉज हमारी मेंटल हेल्थ वीक है, जस्ट बिकॉज हमें हर एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है। एंड व्हाट आत्मज्ञान क्या करता है? आत्मज्ञान जब आपको हो जाता है तब आपको कोई चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक लिटरली नथिंग। जितना ये बोलने में मुझे इजी लग रहा है, उतना करने में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इन दिस जनरेशन, बिकॉज आई एम जेन ज़ी, एंड इस जनरेशन में हर एक को फ़र्क पड़ता है, लाइक उनकी इमोशंस आर लाइक वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी सेंसिटिव इमोशनली, एंड उनको हर एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है। बट ट्रस्ट मी, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन, आत्मज्ञान विल हेल्प यू। इट लाइक आपको एक परफेक्ट डेफिनेशन बता देती हूँ। आत्मज्ञान क्या है कि जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है ना, तब आपको कोई चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यू ओनली केयर अबाउट योर गॉड, द नेचर, एंड दैट्स इट। आपको किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो इंसान है, वो चीज़ है हमारे पास, ओके फाइन, थैंक्स फॉर गॉड, बी ग्रेटफुल। एंड अगर वो चीज़ हमारे पास नहीं है, वो चीज़ हमसे दूर चली गई है, ओके थैंकफुल, दैट्स इट। वो हमारे नसीब में नहीं होगा शायद, या फिर उससे ज़्यादा बेटर होगा। एंड ये जितना बोलने में ईजी है ना, उतना करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आप सीख गए, दिस इज़ वेरी गुड थिंग, very helpful thing, and I am currently working on this, and it's really very helpful because I'm Gen Z, I'm a student, and कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स हमें कुछ बोल देते हैं, हमारे फ्रेंड्स कुछ बोल देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमें, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और फिर आपको मेंटली इफ़ेक्ट करता है, फिर आप स्टडीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते। पर अभी मुझे कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो गई है, like I really don't expect from anything, and this is a big thing because फिर तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ओके दैट्स इट। एंड आई होप आपको इससे आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो। आई विश कि मैंने लाइक बहुत अपना पूरा ये लगाया है कि आपको समझ आ जाए। आई गेस आपको समझ आ गया हो। आई एम सॉरी अगर मैं कहीं गलत हूँ, तो कमेंट में बोलो कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी और कौन सी चीज़ में मेरा फॉल्ट था, बिकॉज आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, आई एम जस्ट अ टीनेजर trying to explain and record what I am learning and what I have learned, and one of those is आत्मज्ञान, जिसमें मैंने थोड़ा सीख रही हूँ, because this is such a big thing, such a deep thing. Learn this is very helpful to you, and I guess this is a purpose of life. ये भागवत गीता में भी लिखी है कि इंसान को आत्मज्ञान होना चाहिए। इट्स रिटन इन भागवत गीता, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। मैं ऐसे वैसे कहीं से उठा के नहीं लाई, एंड दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग दिस बुक, ज्योति से ज्योति जली, रिटन बाय ओशो, अ इंडियन फिलोसोफर। इसकी ऑडियो बुक भी है। आई गेस अगर मुझे मिलेगी तो मैं नीचे डाल दूँगी। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको इससे थोड़ी सी कुछ अच्छी नॉलेज मिली हो, एंड heal yourself, understand yourself in this busy life, and be healthy, be mentally strong, because after your death no one going to with you, so stop wasting your time in others, because जब आप मरोगे ना, तब आपके साथ कोई जाने वाला नहीं, so don't waste your time in there. Work on yourself, be healthy, be grateful. So yeah, thank you so much for watching. Bye bye.